Welcome, Harshal. We're glad to Hey, have you. hey, welcome. Thank you, thank you. Thanks a lot, Prashant. I'm really glad to be here. Mhm. Yeah, so Harshal happens to be a PhD researcher, and he works on labor economics and public policy, and he has also been a fellow at a CM research fellow with the Delhi government, and he has worked closely with the labor department and various other leaders. Tell us, Harshal, how did you join? How did you get the idea of working in public policy or economics? यार हम सब तो यार इंजीनियरिंग करते हैं हाँ ये आइडिया कहाँ से आ गया? या सो ऐसा नहीं था कि कुछ बहुत ज़्यादा प्लान्ड आइडिया था कि दिमाग हम्म में सोचा था यही करना, बट या सोशल साइंस बैकग्राउंड से थे, एक्टिविज्म में भी इन्वॉल्व था। लाइक हम्म अपनी एमए के टाइम से अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में एक्टिविज्म में थे, एमफिल करी तब भी थे, एंड फिर जेएनयू में था, साथ में पढ़ा रहा था। आई वाज टीचिंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, सो हाँ नाइस दैट नाइस and I was like earning quite well उस time compared हम्म to what I'm getting right now, much more than that. But when I हम्म got to know about this opportunity, फिर पता चला कि यार मे बी लेबर के ऊपर काम कर रहा हूँ, एंड देयर आर चांसेस या तो एजुकेशन या लेबर डिपार्टमेंट में आई बी लाइक समवेयर बी ऑफ रियली हेल्प to them. हम्म So, and I was obviously a huge admirer of all the policies of Aam Aadmi Party at that time. I did not have an exposure to the party as a राइट volunteer, but so I thought कि maybe this would be a great opportunity to know कि जो तुम सब बोलते रहते हो, constructive criticism देते रहते हो, उनको actually ground पे कैसे लगा सकते हैं. So yeah, because of that I applied for it and luckily got through it. And yeah, it was a hell of a ride. Like till now it's just going on, and you yeah understand yeah how things are going on currently in the department, uh-huh. or how our policy is formed and how they are actually implemented. I just have a first hand experience for all those things right now. Yeah, that's a very rare experience for somebody your age, I suppose, in India, right? Yeah. Yeah. So, I mean, for how long have you been a CM research fellow, and what is the term duration of this fellowship? Yeah, so this is a Chief Minister Urban Leader Fellowship Program. It's Right. one of a kind program launched initially. One of the Delhi government was one of the first government that launched this program. So basic Mm-hmm. aim is program का ये है to bridge the gap between the ministers and the bureaucrats, Right. bureaucrats. तो Mm-hmm. उनके बीच में एक हमेशा एक गैप रहता है, उसको ब्रिज करने का काम फेलो का था. एंड नाउ इन्होंने टारगेट करे यूथ को, जो दे वांट सम चेंज. सो Mm-hmm. आम आदमी पार्टी ने इस चीज को लॉन्च किया एंड इट हैज बीन अ ग्रेट सक्सेस. 2 साल का प्रोग्राम होता है, 1+1 ईयर एक्सटेंडेबल टू Mm-hmm. 1 ईयर. Yeah. Yeah. एंड इस प्रोग्राम के देखते हुए हरियाणा गवर्नमेंट ने एक ऑलमोस्ट ऐसा से एक प्रोग्राम लॉन्च किया, तेलंगाना Nice. गवर्नमेंट ने ऐसे ही प्रोग्राम लॉन्च किया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया. तो इट्स लाइक एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिल रहा है कि लोगों को समझ आ रहा है कि हाँ, ऐसे लोगों की नीड है डिपार्टमेंट में जो Right. पॉलिसी Right. रिसर्च करें. बिकॉज वी आर नॉट Right. पर से लाइक डिपार्टमेंट में, अगर आप गवर्नमेंट में कभी भी इंडिया में काम करोगे, एक टर्म होते हैं कंसल्टेंट. सो Mm-hmm. वी आर नॉट Right. कंसल्टेंट पर से कि हमें कोई पॉलिसी पे कंसल्ट करना होता है. हमें वो Mm-hmm. पॉलिसी लगानी कैसे है, हर जगह एक फाइल एक जगह से दूसरी जगह कहाँ मूव होएगी, कैसे होएगी, Mm-hmm. उसके अंदर क्या क्या चेंजेस करने हैं, वापस अगर शुरू से हो रही है तो Mm-hmm. अपडेट देना टू मिनिस्टर के ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग एंड मे बी आपकी यहाँ इंटरवेंशन की जरूरत होगी, ऑल दोज थिंग्स. सो वो काम फेलो का होता है. एंड या इट्स समथिंग लाइक आई रियली लाइक दिस काइंड ऑफ अ चेंज अगर हमारी पॉलिटिक्स में आ रहा है. सो दैट्स a great experience for me as well to be a part of it. Yeah, yeah, yeah. So your the other fellows that you're working with, they must be in other ministries, right? कोई environment में होगा, कोई health में Yeah. होगा, and so on, right? या सो Yeah. ये इनिशियल बैच हमारा 30 फेलोज का था, तो Mm-hmm. सब में अलग अलग एजुकेशन हेल्थ इन सारे डिपार्टमेंट्स पे थे. ऐसी एक Mm-hmm. और फेलोशिप निकाली थी दिल्ली गवर्नमेंट, बिकॉज इसका अच्छा पॉजिटिव रिव्यू आया था. तो दिल्ली Correct. गवर्नमेंट केप आउट विद द दिल्ली असेंबली रिसर्च सेंटर फेलोशिप एज वेल, Ah, जहाँ पे nice. Mm-hmm. ऑल द विधानसभा, ऑल द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, Mm-hmm. ऑल Mm-hmm. 70 असेंबलीज, एवरीवन हैड वन फेलो जो उस ग्राउंड लेवल पे हर हर विधानसभा में जो कुछ प्रॉब्लम होती है उनको Mm-hmm. सॉल्व करने में लगते हैं. वहां पे पॉलिसी अगर नहीं पहुंच पा रही, फॉर एग्जांपल कोई स्कूल है जिसकी कंस्ट्रक्शन हम यहाँ से पास होगी सचिवालय से, बट उसके विधानसभा में काम नहीं हो पा रहा, तो उसको वहां Mm-hmm. फेलो देखेगा. मोहल्ला मोहल्ला क्लिनिक के यहाँ से पास हो गया लेकिन वहां पे नहीं काम कर पा रहा, कोई मेडिसिन नहीं पहुंच पा रही है, वो सारी Mm-hmm. चीजें ऑन ग्राउंड पहुंचने के लिए उसके लिए भी फेलोज बनाए हैं. तो इस टाइम पे मतलब फेलोज का लाइक अभी आप अगर दिल्ली में अगर आओगे, आप में से अगर कुछ जो भी लोग रहते हैं,
गवर्नमेंट में काम करने वाले सारे लोगों को पता है कि हाँ कोई भी काम नहीं चल रहा, वो फेलोज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करके फेलोज कर रहे हैं। Yeah, I mean, it sounds a bit strange, like some work that should be done by employees of the government is now kind of offloaded to some new temporary employees. आई वुड से सम वे लाइक दैट, और कहीं ना कहीं पुश देना भी जरूरी होता है ना, लाइक ऑल द एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनके साथ एक जो मेजर प्रॉब्लम है, दे आर वेरी रिस्क अवर्स, उनकी इंक्रीमेंट ना रुक जाए, उनकी पेंशन पे फर्क ना पड़े। देखो उनको निकालना बड़ा मुश्किल होता है अगर कोई परमानेंट एम्प्लॉय है, बट उसको ये लगता है कि मेरे पैसे कम ना हो जाए, और वो इसलिए कोई रिस्क लेता नहीं। हम फेलोज का क्या, हम मतलब यहाँ पे चेंज के लिए आए और हमें कुछ बहुत जल्दी चाहिए होता है रिफॉर्म करना। अगर हम किसी मिनिस्टर है सेड इसको 15 डेज में करना है तो 15 डेज में हमें करना ही करना है, बट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है वो इस हिसाब से नहीं सोचता, तो उसको हम कहीं ना कहीं उसको पुश दे पाते हैं, एंड कई चीजें जो डिसीजंस वो नहीं ले सकते, कहीं ना कहीं हम उनकी हेल्प करते हैं इन डिसीजंस को कैसे लिया जाए। सो या Awesome. Yeah. So you have been a PhD researcher. Did you have to like take a gap from your studies for a couple of years to do this? नॉट रियली, लाइक जब मैंने अपनी एमफिल कर रखी थी, एमफिल के बाद मेरे को कोर्स वर्क नहीं करना था अपने पीएचडी में लकी, तो आई हैव 5 years to complete my PhD. I am in my 4th year and tentatively मैं सबमिट कर दूंगा इस ईयर के एंड में, आई होप सो कि कर दूंगा। बट या सो मेरे को कोई गैप नहीं लेना पड़ा, बट या डबल बर्डन हो जाता था। आई हैड टू मैनेज के लाइक सैटरडे संडे अपना पीएचडी का काम हर हालत में करना है, एंड उसके अलावा 5 days working for the government, so just managing both of those things. Wow. That's a lot of juggling indeed. Yeah. A quick overview. What is the research problem you work on for your PhD, and how does that in some way connect to your targets with the fellowship? Yeah. So मैं यहाँ पे जो भी लोगों में सुन रहा हूँ उनको, मतलब अगर सिंपल भाषा में बताऊं, मेरा टॉपिक सिर्फ ये है, जो हम लोग स्किल्स गेन करते हैं, फॉर्मल स्किल्स एजुकेशन के थ्रू, उन स्किल्स को हम ऑन ग्राउंड अपने जहाँ पे हम काम करने जाते हैं वहां पे कितना अप्लाई कर पाते हैं। इस गैप और इनके दोनों के बीच में जो गैप होता है जिसको हम स्किल गैप बोलते हैं, मैं कहीं ना कहीं उसको लोकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मेरा टॉपिक था। इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट भी है, लेबर भी है, इंडियन इकोनॉमी भी है, तो ये सारी चीजें जगल होके मैं इनके ऊपर काम कर रहा हूँ, एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट वुड बी द रोल ऑफ स्टेट एंड रोल ऑफ फर्म्स इन दिस होल प्रोसेस ऑफ स्किल फॉर्मेशन। सो दिस इज माय टॉपिक। और अब जो मेरा यहाँ काम होता है दैट इज बेसिकली लेबरर्स के साथ डायरेक्ट डील करना, टॉकिंग अबाउट के जो एक्चुअल ग्राउंड पे। अब मैंने अपनी एक थीसिस लिख दूंगा, जेएनयू से हर साल हम टेंटेटिवली अराउंड 5,000 बच्चे यहाँ से निकलते हैं, जिनमें से टेंटेटिवली 1,000 PhD स्कॉलर्स होते हैं। सो वो लोग, हम सब थीसिस लिख पाते हैं, बट उसको ग्राउंड पे अप्लाई करने का मौका यहाँ मिला है मुझे। मैं अभी लेबर डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, बट साथ में दिल्ली गवर्नमेंट, एज यू नो, आवर ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ लेबर इज आल्सो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, तो वो स्किल्स यूनिवर्सिटी भी वी आर स्टार्टिंग। सो मैं उसमें इन्वॉल्व होता हूँ, उसके अंदर कैसी करिकुलम डिजाइनिंग क्या होनी चाहिए, क्या चीजों की जरूरत है। So all those things I am able to get in hands-on experience from experts from all around India, who जो अगर उनकी कमिटी मीटिंग होती है मैं उसमें भी स्नीक इन कर जाता हूँ कि अच्छा यार ये मेरे भी काम की चीज होगी, एंड मे बी आई विल बी एबल टू गिव बेटर थिंग्स टू देम एज वेल। साथ साथ में मेरे को अपना लाइक एक एक्टिविज्म का जो कीड़ा है वो भी साथ में चलाना होता है। तो लेबर को अगर कोई काम नहीं, कोई नई चीज मिल रही है, कोई उनका बेसिक हक की चीज होती है, उनको कुछ पैसे मिलने होते हैं, क्यों नहीं मिल रहे हैं, उनको 10,000 रुपए मिलने होते हैं उसमें से, लेकिन जो हमारे नीचे के लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि तुम्हारे अकाउंट में 10,000 रहेंगे, 7,000 तुम रख लें, 3 मुझे दे दो। तो नहीं, इस चीज के चक्कर में 3-4 महीने उनको अटकाते रहते हैं। तो एंड व्हाट हैपेंस, अगर हम एक बार ग्राउंड पे उनका हालचाल पता कर लेते हैं, एंड उसकी कहीं ना कहीं हमारे थ्रू उनको पता है कि वी आर वेरी मच क्लोज टू द people in power, so they get very scared and they pass those things up. So every day tentatively मेरे को 15 से 20 लेबरर्स के कॉल्स आते हैं इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, लेबर कोड्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो वो चीज मेरे को अच्छा लगता रहता है पूरे दिन, लाइक आई एम कनेक्टेड टू द ग्राउंड एट द एंड। तो स्टडीज चल रही है, दैट्स गुड, बट आई नो फील्ड में अभी क्या प्रॉब्लम है लेबर की, एंड मैं उनको डायरेक्टली हैंडल कर पा रहा हूँ। Right, which brings us to the other question, मतलब like
स्टेट ऑफ द नेशन, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी के ऊपर तो मतलब काफी ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर एक पेंट किया जा रहा है कि भाई वी शेप रिकवरी हो जाएगी बड़ी जल्दी, एंड यू नो एंड the long lasting effects of all the shocks that the system has withstood, they will all wither away and everything will turn into normal. I mean, ground के कनेक्ट से क्या लगता है? I mean, like कितनी सच्चाई है इसमें? मैं दोनों साइड से बताऊंगा, सिर्फ अपने फील्ड एक्सपीरियंस से नहीं एंड अपनी रिसर्च दोनों से अगर मैं आपको बोलूंगा, बहुत बुरी हालत है. आई हैव बीन वर्किंग ऑन इंडियन इकोनॉमी for I would say from past 7 to 8 years, closely looking at all the data for I would say education, labor, unemployment. It would be good if I can I share the screen? I'll would really want to show you some numbers to the audience so that they can also really connect. That would be good. Yeah. I'll just, is the screen visible? Yes. Please, audience, those who are connected through Uber conference, it would be lovely if you could also connect through Facebook and you could watch some numbers that Harshil is showing. Yeah. Go ahead. So मैंने 3 या 4 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को बताना चाहूंगा. पहली चीज है जो रोजी पिक्चर की आप बात कर रहे हो प्रशांत, जो हमें खुद पता है कि इंडिया लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन का नेशन है. इस चीज को डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं. डेमोग्राफिक डिविडेंड बेसिकली होता है कि हमारे देश में 15 साल की उम्र से 64 साल की उम्र के बीच के जो लोग हैं, जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है, जो लोग काम कर सकते हैं, कमा सकते हैं, वो आर मच लार्जर कंपेयर टू डिपेंडेंट पॉपुलेशन. डिपेंडेंट कौन होती है? बच्चे 15 से कम की उम्र के या 64 से उम्र के ऊपर वाले. तो अगर आप ध्यान से इंडिया का देखोगे कर्व, ग्रीन कर्व, दिस इज द ग्राफ बिटवीन 1980 टू 2050. इंडिया की जो ये टोटल डिपेंडेंसी रेशियो है बिल्कुल नीचे जाया जा रहा है, और ये रेशियो जितना नीचे जाता है उसका मतलब हमारे पास यूथ पॉपुलेशन ज्यादा और हम बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं, विच इज फैंटास्टिक. बट ये जो हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये अराउंड 2030 के बाद से बढ़ना शुरू हो जाएगा, विच मीन्स हमारे पास ज्यादा डिपेंडेंट लोग आ जाएंगे. ये रेशियो वन ऑफ द लोएस्ट है इंडिया में. यूनिक कंडीशंस हैं इसके. इंडिया के अलावा सिर्फ एक साउथ अफ्रीका के पास ये एग्जैक्ट सेम कंडीशंस हैं. ये डेमोग्राफिक डिविडेंड चाइना रीच करके छोड़ चुका है, और वो आज भी बोलता है, 2010 में खत्म हो गया था उनका, वो आज भी बोलता है कि हम पूरी तरह से इसका बेनिफिट रीप नहीं कर पाए. रशिया में खत्म हो गया, जर्मनी में खत्म हो गया, ब्राजील में खत्म हो गया. इंडिया में एवरेज एज जो है एक बंदे की अगर आप लोगे तो वो एवरेज एज आती है 31 इयर्स. व्हाट इज दैट एवरेज एज इन जर्मनी? 46 इयर्स. चाइना में कितनी है? 39 इयर्स. सो हम एक यूथ पॉपुलेशन वाले नेशन है जिसके पास अभी लोग हैं जो काम कर पा रहे हैं, जो अच्छे से काम कर सकते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि उनको काम मिल रहा है, बट हमारे पास लेबर फोर्स है अच्छी खासी इस टाइम पे. इसी के साथ, इसी के बिल्कुल पोलर ऑपोजिट अगर मैं आपको एक और चीज दिखाऊं, एजुकेशन प्रोफाइल ऑफ आवर लेबर फोर्स. अगर मैं आप 2011 ये 4 या 5 टाइप के लेबर फोर्स को मैंने डिवाइड किया है. हमारा इलिटरेट, प्राइमरी, इनके एजुकेशन के बेस पे उनको डिवाइड किया है. अभी भी हमारे देश के टोटल जो लेबर फोर्स जो काम कर रही है, 21% लोग जो हैं वो इलिटरेट हैं. अगर इस 21% को एब्सोल्यूट नंबर्स में देखेंगे, दिस इज इक्वल टू जितनी हमारी पॉपुलेशन थी आजादी के टाइम पे. 1947 में जितनी टोटल पॉपुलेशन थी उतने लोग अभी लेबर फोर्स में इलिटरेट हैं. तो एंड अगर आप टोटल अगर मिला लोगे सेकेंडरी से बिलो, मतलब लेस देन 8th पास, 61% ऑफ आवर टोटल लेबर फोर्स इज लेस देन 8th पास. आप उस लेबर फोर्स जो 8वीं पास भी नहीं कर पाई है, उस लेबर फोर्स से कैसे आप इस देश को, मतलब जो आप रोजी पिक्चर की बात कर रहे हैं, उस साइड पे आगे बढ़ सकते हैं. आई एम रियली हैप्पी कि हमारे देश में एक टाइम पे आरटीई लग गया, जिस चक्कर में ये नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं, इलिटरेट्स कम होने शुरू हुए. बट उसके अलावा अभी भी लेकिन देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो एजुकेशन के मामले में. एंड कमिंग टू, क्योंकि एजुकेटेड है नहीं हमारी जनता, एंड उसके चक्कर में हमें प्रॉब्लम क्या आती है? एम्प्लॉयमेंट की. हमारे देश में इस टाइम पे एम्प्लॉयमेंट रेट जो बार बार बोला जा रहा है ना, अनएम्प्लॉयमेंट कोरोना के चक्कर में आ गई है. ये जो मैं आपको फिगर्स दिखा रहा हूँ, ये प्री कोरोना फिगर्स हैं एब्सोल्यूट नंबर में, दैट इज इन मिलियंस. सो सबसे लास्ट जो ग्रीन में हाईलाइटेड है, दैट इज द ओपन अनएम्प्लॉयमेंट. आप 2011 से 2017-18 के फिगर्स को कंपेयर करो, 10.6 से 30 मिलियन तक बढ़ गई है अनएम्प्लॉयमेंट. एंड अगर यूथ में देखोगे वो तो 9 मिलियन से 25 मिलियन तक बढ़ी है 2017-18 या 18-19 में. एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम देश के अंदर, अगर आप रेड में जो मार्क लाइन है अगर उसको देखोगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एब्सोल्यूट नंबर में लोग कम जा रहे हैं.
जो लोग जो भी लोग लेबर फोर्स में हैं, 22 से अब 18 और अब 17, और मैं आपको रीसेंट नंबर जो लास्ट अभी 2020 का एक टेम्पररी सर्वे हुआ है कि 15 मिलियन तक लोग आ गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम डेवलप करना नहीं चाहते हैं, एग्रीकल्चर से लोग बाहर निकल रहे हैं, विच इज गुड, बट सारे सीधा सर्विस सेक्टर में जाएंगे। सर्विस सेक्टर का मतलब होता है सर्विसेज ऑलवेज गिवन ऑन अ गुड। वो गुड्स हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो देयर इज नो चांस कि हमारी इकोनॉमी कहीं पे भी आ गई। वंडर्स जो हम सोच रहे हैं क्रिएट करने का, जो हमें सपने दिखाए जाते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और नंबर जो भी बोलते रहो, हम उसके कहीं आसपास कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। एंड उसके पीछे आई वुड से लीडिंग टू वन ऑफ द लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मेरा मतलब आई वुड से इज वेरी क्लोज टू मी, रिलेटेड टू लेबर कोड्स। दिस इज समथिंग आई वुड रियली वांट लाइक हमारी जनता को जरूर पता हो। जैसे अभी सब लोगों को पता है फार्म बिल्स के ऊपर प्रोटेस्ट चल रहा है। बिल्कुल, जिस पार्लियामेंट सेशन में ये फार्म बिल्स पास हुए थे, और हमारे सारे ऑपोजिशन पार्टी ने बॉयकॉट किया था लास्ट पार्लियामेंट्री सेशन को, उसी सेशन के अंदर ये लेबर कोड्स भी पास हुए। ये लेबर कोड्स आर वेरी डेट्रीमेंटल टू आवर इकोनॉमी। जो 44 लेबर लॉज हैं जो बड़ी मेहनत से 70 साल की स्ट्रगल के बाद बनाए गए थे, इन सबको रिप्लेस करके 4 लेबर कोड बना दिए गए हैं। इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं हुई, लिटरली कोई चर्चा नहीं हुई, मतलब न्यूज़ में तो कुछ आया ही नहीं। ये एग्जैक्टली दैट इज द मेन पॉइंट। लाइक इसको बहुत दबा के रखा जा रहा है। एंड आई वुड टेल यू दिस इज नॉट समथिंग जिससे जो हमें लगता है कि सिर्फ यार ये जो माइग्रेंट लेबर था वो इफेक्ट हो रहा है। ये कोड्स एक एक बंदे को जो इंडिया में काम करता है उसको इफेक्ट करेंगे। कोड ऑन वेजेस से आप सबकी सैलरी, पीएफ, पेंशन, ग्रेचुटी, जितने भी लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो ऑर्गेनाइज, सबकी वेजेस इफेक्ट होंगी। Important thing is IT industry में जो भी काम कर रहे हैं, who think that they are immune to all these fluctuations or so, banking sector, finance sector, even they will be affected by this? Absolutely. अगर आपको supposedly आपकी कोई लड़ाई हुई है, किसी से लड़ाई होकर आप उसको सोचते हो कि मैं तेरे पे केस कर दूंगा, तो अगर आपको कोई वेजेस नहीं दिए, सपोजली आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे थे एट अ वेरी गुड फर्म, प्राइवेट फर्म में काम कर रहे थे, उन्होंने आपको पिछले 2 महीने से वेजेस नहीं और आपको निकाल दिया, आप ये सोचोगे ठीक है मैं तुम पे केस कर दूंगा। केस करने कहाँ जाओगे आप? लेबर लॉ उसमें ही जाओगे, लेबर कोर्ट में जाओगे। और अब आपके पास जो लॉज थे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट था, आपके पास पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट था, वो सारे को रिप्लेस करके एक एक्ट क्या बना दिया है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। उनके अंदर जो, अगर आप इनको बारीकी से स्टडी करोगे, आई सैट विद अ फ्यू ऑफ माय लॉ फ्रेंड्स, दीज आर वेरी डेट्रीमेंटल फॉर आवर इकोनॉमी। इनकी कोड्स जो है बहुत ज्यादा प्रो एम्प्लॉयर हैं, और what in my opinion they are just gonna increase exploitation of labor in our economy to a massive scale। तो जिस चीज के लिए हमारा इस टाइम पे किसान लड़ रहा है रोड पे, उसी चीज के लिए मजदूर भी लड़ रहा है। पिछले 6 महीने से मजदूर भी स्ट्राइक्स कर रहे हैं, हर कंसिस्टेंटली स्ट्राइक कर रहे हैं, बट एब्सोल्यूट मीडिया बॉयकॉट है उन स्ट्राइक्स का भी। एंड स्ट्राइक से एक और चीज, मतलब इन लेबर कोड से आपको बता पाऊं, ये इन कोड्स में क्या रिप्लेस, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज रिप्लेस करी है इन कोड्स में, ये लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई स्ट्राइक कॉल करनी है, सपोजिटली वेजेस बढ़ने के लिए या बोनस मिलने के लिए, आपको 90 दिन का नोटिस देना होगा अपने एम्प्लॉयर को बिफोर द स्ट्राइक, व्हिच इज एब्सोल्युटली हिलेरियस। आप 90 दिन पहले कैसे बता सकते हो कि आप स्ट्राइक करने वाले हो? सो ऐसी फैक्ट्री की डेफिनेशन बदल दी है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कंडीशन, प्रशांत जैसे आपको लग रहा है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ। इस कोड के लास्ट सेक्शन में ये लिखा हुआ है, अगर आप एक स्टार्टअप हैं तो पहले साल आपको ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड में जो भी गिवन है, आपको उनमें से कोई चीज फॉलो करने की जरूरत नहीं, आपको रिबेट मिल जाएगा। और उसके नेक्स्ट लाइन में ये लिखा हुआ है कि आप इस जो रिबेट है, अगर आप फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट्स नहीं कमाते हैं तो इस आप रिबेट को 2 साल और एक्सटेंड कर सकते हैं। 3 साल तक हमारे कोड में ये लिखा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, जहां पे अगर कोई मर जाता है, अगर उसकी ढंग से वर्किंग कंडीशन नहीं फुलफिल होती हैं, उसको सेफ्टी गियर नहीं दिया जाता, तो एम्प्लॉयर के ऊपर केस ही नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो स्टार्टअप है। तो कौन बता 3 साल के बाद अपनी कंपनी बंद करके फिर से शुरू कर लेगा, क्योंकि उसे तो क्यों ही कोड फॉलो करना होगा। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल आई एम गिविंग। मतलब अगर आप डीप स्टडी करोगे, these are really very detrimental to our economy, and this is something each and every person in India should really oppose, or something at least they should know कि उनकी लाइफ चेंज कर रही है गवर्नमेंट धीरे धीरे सीपन करके। सो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मेन एम है, लाइक जो सोशल सिक्योरिटी का एक जो कोड है, उसके अंदर एक लास्ट चीज आपको बताऊं, जैसे प्राइवेटाइजेशन ऑफ ये फार्म्स हो रहा है, वैसे जितनी हमारी ईपीएफ है, ईपीएफ के अलावा जितने भी हमारे बड़े बड़े फंड्स है, कॉर्पस फंड्स हैं, उन सारे फंड्स को ये एक जो अब बंदा होल्ड करेगा वो सीईओ होएगा,
ही कैन नॉट बी समवन फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो ये सारे फंड को कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर की साइड लेकर जा रहे हैं एंड इसको इंश्योरेंस में ट्रांसफर करके आई रियली डोंट नो कि इस चीज को ये कहाँ यूज करने वाले हैं, बट सर्टेनली लेबरर्स के बेनिफिट के लिए जो फंड्स इकट्ठे हुए थे वो कहीं ना कहीं लेबरर्स से दूर लेने They का will be पूरा subject to प्लान market बनाया जाए। risk. For sure, for sure. Yeah, yeah. So and this is something everyone should really study because this is gonna affect your life and this is something जो बहुत बुरी हालत आप लोगों की करने वाले हैं आगे फ्यूचर में। So take it as a warning at least from me कि I am really scared about इनके क्या इफेक्ट होंगे हमारी मार्केट पर। Right. So yeah. I'll just stop the screen sharing. I think. Yeah. No worries. No worries. Yeah. Yeah, I mean, like really scary things. And before I open the floor for questions, the burning question here is कि we saw 40 odd farmers unions, all from very different backgrounds, coming together on what is wrong with these farm laws and presenting that, and try at least attempting some kind of collective bargaining. साथ में मिलके bargain कर रहे हैं सरकार से कि ये सही नहीं है। मजदूरों में ये ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा। कंस्ट्रक्शन वर्कर से लेके एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर तक सबको अगर ये अफेक्ट कर रहा है, ये वर्किंग क्लास और सैलरीड क्लास लोग जो है, मतलब ऐसे एकांतरित क्यों नहीं हो पाते इंडिया में? इसका एक मेजर रीजन है जो हमारी वर्किंग क्लास है वो कहीं ना कहीं मोस्टली लार्ज चंक जो है वो मिडिल क्लास चंक का है। तो एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है कि हम लोअर क्लास के साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं करना चाहते एंड वी एस्पायर टू बी द हायर क्लास। तो इसलिए जो यूनिटी होती है, मतलब दे नो थिंग्स आर बीइंग रॉन्ग, जो उनके साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, बट एक साइकी बना दी जाती है जिसको लाइक आई वुड से रामसे जो बोलते हैं हेजिमोनिकल रिलेशन बना दिए जाते हैं। इसका लगता है यार सबके साथ ही तो ऐसा होता है कि अगर कुछ एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मेरा बॉस मेरे को 2 घंटे लेट तक काम करवा रहा है, नॉर्मल तो है। अगर सुबह जल्दी बुला रहा है, साइड बुला रहा है, नॉर्मल तो है, हर कंपनी में होता है। इस चक्कर में जो भी एक्सप्लॉइटेशन, एग्जैक्टली, एंड जो जितनी भी एक्सप्लॉइटेशन है उसको सहन करने के ज्यादा मूड में रहते हैं रादर देन प्रोटेस्ट या एजिटेट करे या जस्ट द नॉर्मल वर्ड जो होता है बार्गेनिंग पार्ट, उनकी कम सप्रेस करे जा रहे हैं एंड उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। यूनाइट होने का आई वुड से कि ट्रेड यूनियन जो हमारी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस है उन्होंने कई बार प्रोटेस्ट कॉल करी है, बट आई वुड से अभी तक एक बहुत लार्ज स्केल पे एक प्रोटेस्ट नहीं हो पाई है लेबर्स की, विच आई सर्टेनली होप कि हो। आई हैव बीन टू मेनी ऑफ दीज प्रोटेस्ट, बट आई हैव नॉट सीन कि हम लार्ज स्केल पे मोबिलाइज कर पाए हैं इस टाइम पे लेबर यूनियंस को, दैट एवरीवन शुड नो ये चीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Right. Yeah, that was a very grim picture that you painted of real picture. Yeah. So our guests tonight, do we have any questions for Harshal? Please. Yeah. Hey Harshal. Hi, this is Mansi from Michigan. Hi Mansi. Hey Mansi. Hi. So I just had one question. ये तुमने जो labor laws के बारे में बताया, I mean I don't know much about labor laws and everything, but from my understanding, it's like कि labor laws बहुत ही ज़्यादा complicated है। मतलब अगर तुम्हारे पास कुछ 10 लेबर है, तुम्हारे लिए कुछ अलग थ्रेशोल्ड अप्लाई होता है, फिर एक ज़्यादा लिया तो फिर ज़्यादा थ्रेशोल्ड होता है, एंड उससे मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेबर वगैरह ज़्यादा प्रमोट होता है इंस्टेड ऑफ से परमानेंट एम्प्लॉयमेंट। एंड आई मीन आई एम नॉट श्योर व्हाट द करंट ये जो नए लॉज आए उसे कितना इम्पैक्ट हो रहा है या फिर क्या एग्जैक्टली वो एड्रेस कर रहे हैं, बट फ्रॉम व्हाट आई नो दैट labor laws are very complicated in India, and there was like मतलब businesses or entrepreneurs and जो तुम्हारा trader class है, they actually want labor laws to be more simplified. So can you like give some comment on that? Sure. ये कन्वेंशनल नोशन है मानसी, हमें बाहर से लगता है कि लेबर लॉज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, विच आई वुड से ओवरलैपिंग है मोर देन कॉम्प्लिकेटेड। 44 लेबर लॉज हैं, सिने वर्कर्स का अपना लेबर लॉ है, बीडी वर्कर्स का अपना लेबर लॉ है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का अपना लेबर लॉ है, तो डिफरेंट उनके सेक्टर्स के अपने अपने लेबर लॉज थे, अभी तक हैं सपोजिटली। बट इन चीज़ों को हमारे दिमाग में बना दिया जाता है कि ट्रेडर्स एंड एम्प्लॉयर्स आर रियली लाइक हमें लेबर लॉज के चक्कर में हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। देयर हैव बीन न्यूमरस वर्क्स ऑन दिस जहाँ पे बताया जाता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेबर के चक्कर में क्या इस टाइम पे फ्लेक्सिबिलिटी हमारी
उसमें है या नहीं है मार्केट में। कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर हर जगह हायर हो रहा है, हायर एंड फायर की पॉलिसी हर जगह हो रही है। तो लेबर लॉज कौन से डेट्रीमेंटल है इस टाइम पे? करंट लेबर लॉज बोला जाता है कि बहुत रिजिड है, जो बेसिक आपका क्वेश्चन था। आई डोंट थिंक सो हमारे लेबर लॉज कहीं पे भी रिजिड थे। वो ढंग से इफेक्चुअल आई वुड से एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट भी नहीं हो पाए थे। वो एक अलग सैड सिचुएशन है, बट बनने के टाइम पे वो बहुत ज्यादा कोई रिजिड नहीं है। सो मैं जो इन लेबर कोड्स आपको बताना चाहता था, ये आइडिया बहुत अच्छा है। 44 लेबर लॉज को 4 लेबर कोड्स बना दिए जाएं, एंड उन लेबर कोड्स के अंदर सिंपल भाषा में बताया जाए क्या क्या चीज करनी है। बट इसके अंदर जो चीजें डालनी थी वो चीजें मिसिंग है, जो हमारे एसेंस था लेबर लॉज का। लेबर लॉज का मतलब होता है राइट्स प्रोटेक्ट करना ना, वो जब राइट्स प्रोटेक्ट नहीं हो रही है, जो एक एसेंस है वो मिस है इन लेबर कोड्स के अंदर। एंड लास्ट जो रिकमेंडेशंस हुई थी, लाइक एक ट्राइपार्टाइट कमिटी सेट होती है जहां पे गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय तीनों के मेंबर्स होते हैं। उन लोगों ने 173 रिकमेंडेशंस टोटल दी थी। उन 173 रिकमेंडेशंस में से 117 रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट ने मानी। अब उन 117 रिकमेंडेशंस में से 101 रिकमेंडेशंस जो थी वो एम्प्लॉयर्स की थी, और जितनी सारी ट्रेड यूनियंस की रिप्रेजेंटेशंस थी उन सबको रिजेक्ट कर दिया गया। एंड व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? दैट द आवर बिलोवेड सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली नोज। तो बहुत ज्यादा एम्प्लॉयर की साइड देखते हुए उनको प्रो एम्प्लॉयर बनाया गया, विच इज माई प्रॉब्लम विद दिस कोड। आइडिया इज गुड एट एनी कॉस्ट। लाइक अगर लॉस को सिंप्लीफाई करना चाहते थे वो अच्छी चीज है, बट उनका एसेंस खराब कर दिया, विच इज माई रियल एप्रीहेंशन टू दीज लेबर लॉस। Thanks. Yeah. This is So, Akhil. yeah, Akhil, please go ahead. Hi, Harshil. This is Akhil from Toronto. Hi, So hi Akhil. Hi, Harshil. So my question is, do we have a redressal, what we say, like a number where like the laborer can call in case if their work is not done in government offices? या भी Like, दिल्ली के अंदर है, सेंट्रल लेवल पे कुछ है या नहीं है मुझे ज्यादा पता नहीं है। दिल्ली के लेवल पे है, नंबर है 15211। इफ यू वांट टू टेल एनीवन, श्रमिक हेल्पलाइन है ये। उस पे लोग कॉल करके इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम दे कैन रजिस्टर देयर कंप्लेंट है देयर। एंड इसका जो टर्नआउट है विच इज नॉट वेरी गुड जो कंप्लेंट्स हैंडल करने का, बट या अभी उसको रिफॉर्म करके आई वुड से 6 महीने पहले यहाँ पे अराउंड 40% कंप्लेंट्स को सॉल्व किया जाता था। करंट जो नंबर्स मेरे पास थे वो 78% कंप्लेंट्स को सॉल्व किया जा रहा था, विच इज लाइक आई फाइंड अ डिसेंट नंबर जो किया जा रहा था। तो या दिल्ली के अंदर वी हैव अ श्रमिक हेल्पलाइन, जिसके अंदर कोई भी अगर ऑफिस में आपसे कुछ पैसे मांगता है या आपका कोई काम करने से मना करता है, यू कैन रजिस्टर योर कंप्लेंट देयर, एंड या गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर दिस। okay, great. Thanks. Yeah. So, do we have any other questions? Hey, it's Prashant Vishnu here. Yes, Vishnu, please go ahead. Hey, Ashil, thanks for coming on this call. I really appreciate it. Hey Vishnu, thank you. My first question is how was your first interaction with Indian bureaucracy? Like your first day having to interact with them, was it what you imagined it to be, or was there some hostility, or for them accepting somebody who was an intern? How was that? Yeah, so my own experience, it really depends from person to person. मेरे reporting officer होते हैं, like हमें report to minister करना होता है। Like I have been working with गोपाल राय सर and currently with मनीष सिसोदिया सर। तो हम report उनको करते हैं, लेकिन हमारे साथ जो ब्यूरोक्रेसी के लोग होते हैं, जो reporting officers होते हैं, different रहे हैं। मैंने around 4-5 अलग-अलग I have worked with around 4-5 of these officers. Person to person बहुत different, there is a lot of difference between them. If a person is really eager to work, he will be really like he sees me as a resource. He'll barge in my cabin anytime and he'll give me 10 number of files and tell me okay, by evening you have to give me a brief about all these things. But there are people like who initially told us, as you said about the first day, they thought of us, okay, these are sort of like a party person. This is person who is just here to tell me to not how I am not working, and he'll just try to show a bad image of me in front of the minister. So that was bureaucracy, because our bureaucracy is very resistant to change.
if you will tell them you have a resource, they're not ready to accept that resource as well, because they feel we have some hidden agendas or motives. Maybe we'll take away that data and share with some XYZ person or whatever. So at initial level there was a lot of hindrance, but with time, when they noticed in maybe in other departments that okay, people are really taking help of these people and trying to reform their department. So I would say right now things are really smoothened out, but it's too little too late because our fellowship is almost over right now. But yeah, I would say initially there was a lot of resistance. Currently things are pretty smooth. And as I imagined the bureaucracy to be, I would say it turned out exactly like that. Very resistant, very slow, and yeah, taking a lot of time on a very simple task. Yeah. Prashant, can I ask an additional question? Yes, go ahead, Vishnu, please. I want to get your thoughts on the budget. They said a lot of privatization is on the plate, right? LIC, the Air India. Well, I'm more or less kind of pro privatization in certain areas, but not everything. So, what are your thoughts on LIC and Air India and those things which are on the table right now to be prioritized? Yeah, so it's not just my thought. I would say we can look at the history. Nations that have focused on this large scale privatization, they've not been able to develop well. Maybe in short term they'll be able to grow, but it will lead to a large scale inequality. That's it. More privatization will lead to more accumulation of wealth in hands of a certain section of people. As simply put, like if you'll see any 11th class book, you will see the basic nature of privatization. Their motive is profit, and public sector's motive is welfare, as simply put. So when there will be large scale privatization, yeah, there may be more profits produced, but will any one of us get a share of that profit? I don't think so. So, but as you asked, my thoughts on this budget, I was really disappointed because this was a budget after COVID. There have been real talks about increasing the fiscal spending, trying to get more fiscal stimulus into the economy. Till now, the reforms of these fiscal stimulus had not even reached to all parts of India, and they've taken of those things away sneakily. They were not talking about these fiscal stimuluses. These have already been taken away from the economy. The large scale announcement that were done that 10% of GDP is being given as fiscal stimulus. No, it isn't. More 7 to 8% has been monetary shocks. That's it. Fiscal, like what we say, like if I'll say in layman terms, giving money in hands of people. That is something which this government is not currently doing. And a current budget, like I would say around 4 lakh crores of fiscal stimulus that they are showing that we are giving. 3 lakh crore is a adjustment to the FCI. In the times of Corona, what they have done is from past 6 years, they have been giving loans to FCI. So what the year they do, just an accounting thing. They wrote off all those loans. That's it. They have not even actually given that money to FCI. They have just written off those loans. So fiscal spending is very low until the time we don't give money in the hands of people. Consumption will not rise. If consumption will not rise, there will be no rise in investment or growth of the economy. Yeah, I mean, a lot of people don't understand that the recession that India is facing, the dip that India is facing, is because people do not have enough purchasing power, and policies are not tackling that problem. It is making lives of big industrialists easier while not really increasing the disposable money in the hands of people. Yeah, if you'll ask me, I would really want someone who has just passed his 11th or 12th and from the humanities section. He should go and become the finance minister of India. He can easily tell you what is investment multiplier, how do we give money in hands of people, and he'll be able to run the finance system better than what the current government is doing. Yeah, I mean, like, I think you just gave out a secret trick. They will change the curriculums very soon now. नया प्रोपेगेंडा फैलाएंगे कि एजुकेशन पे इन्वेस्ट करने से इकोनॉमी गिरती है. Yeah, really sad state of affairs right now. Yeah.
What you said about what you spoke earlier about how the new reforms are more and more, employer and industrialist friendly rather than people friendly, the worker friendly. So, what is it that a political party can do to organize these people in a common cause? Because it's not happening organically the way it happened for the farming community. Yeah. What can a political party do, and what can we holding power in a state do about Okay. this? So yeah, so I've had thought about this. I've had this discussion as well about how can we organize these at our level, at the Delhi level. Problem is Delhi, these trade unions need a full statehood. They need a proper representation of at least 10% of total industries of a certain state who can then represent themselves in a particular central committee, which Yeah. is holding all these meetings. So currently we don't have a stake that the Aam Aadmi Party government does not have a stake that they can go and hold these, they can voice their opinion or their dissent to the central government. But yeah, what the party is currently doing, which is, I would say, hitting right where it should, how to increase jobs. That is the main question currently in the minds of people. So what is the government doing currently? Trying to find out new avenues of job. Rozgar Bazaar, you must have heard about it. It's going really fantastic. 42% log जो हैं, they are getting calls back, and उनमें से around 36% actually got a job, which earlier wouldn't have got. So, which is a fantastic number. According to me, because this is something a revolutionary step. I, in my thesis, wrote one of the recommendations earlier. There should be a labor market information system. कि पता होना चाहिए कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को क्या नीड्स हैं और वो एक जगह मिले. सो एक्चुअली दिल्ली गवर्नमेंट ने ये इसको ग्राउंड पे उतार के किया, व्हिच इज अ फैंटास्टिक थिंग. इसको ये कंपनी करते हुए आई वुड से दिल्ली गवर्नमेंट बहुत ज्यादा डेटा savvy है. वो करंटली कोविड के टाइम से डेटाज मंगवा के देख रहे हैं कि इस टाइम पे कहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रही है, कौन सा सेक्टर बैडली अफेक्टेड है, पैरल सेक्टर अफेक्टेड है, उसको थोड़ा स्टिमुलस दिया जाए, उनको थोड़ी टैक्स इंसेंटिव स्कीम दी जाए. ऑटोमोबाइल सेक्टर अगर बैडली हिट है तो उनके जीएसटी के ऊपर अगर हम कुछ रिबेट कर सकते हैं वो रिबेट लाए जाए. तो सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज ला रहे हैं. मैक्रो लेवल पे दिल्ली गवर्नमेंट क्या सोच रही है? दे आर स्टिल इन अ प्लानिंग फेज, but they're thinking about an urban employment guarantee program. कई जो वो होती हैं, like jobs the equivalent of Manrega for an urban context. Yeah, for a Delhi urban area, कुछ जैसे जॉब्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स होते हैं, गवर्नमेंट को कई हायरिंग्स करनी होती हैं, माली की जॉब होती है, आंगनवाड़ी की जॉब्स होती हैं, टीचर्स जॉब्स होती हैं, एंड मीन कंस्ट्रक्शन वर्क की जॉब्स होती हैं, एमसीडी, जितनी जगह पे हमें कंस्ट्रक्शन करनी है, फ्लाईओवर्स बनाने हैं, मेट्रो की कंस्ट्रक्शन करनी है, जिस जगह पे हमें जो कंस्ट्रक्शंस करनी है, हम उनके लिए भी लोग, मतलब एक हम एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम लॉन्च कर पाए. बट दिस इज स्टिल इन अ वर्क इन प्रोग्रेस. But one more of the policy, I would say, document which is almost ready is a startup policy. That is also what Delhi government is working on. How we can incentivize the new startups? How can they, like, we can give an industrial friendly environment to them? So there are set of numerous reforms the Delhi government जो इनके हाथ में अभी power है, वो workers को, या I would say हमारे जितने individuals हैं Delhiites, उन सबको jobs कैसे provide करी जाए, कि जिसके चक्कर में जब next COVID time जैसी वो recover करें, एटलीस्ट हमारे पास दिल्ली में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ना हो, और हम इस मुद्दे के साथ कि हम जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं, रोजगार वाली सरकार है, इस मुद्दे के साथ आगे पॉलिटिकली हम दूसरी स्टेट्स के इलेक्शंस के अंदर भी इसको पॉलिटिकल इशू बना के आगे बढ़ा पाए. बिकॉज आप अगर अभी पिछला इलेक्शन जो बिहार का हुआ, वो एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पे इलेक्शन लड़ लिया गया. अगर 10 साल पहले आप किसी को बताओ कि बिहार के मुद्दे में इलेक्शन से 4 दिन पहले कास्ट की बात नहीं हो रही, एम्प्लॉयमेंट की हो रही है, हिल जाएगा वो बंदा. So this is a change which is coming in our political atmosphere, and I really feel like this can be a big issue. If Delhi is able to solve the employment problem of its state, then this can be a huge issue which we can take forward in other states as well. Amazing. I mean, like, so in your view, on the ground, you're seeing that employment related issues are becoming electoral issues, and the effect of caste, religion, and these emotive things that's going down a bit. In my opinion, I won't say totally yes, but yeah, I can see this has become a very important issue. Earlier, people didn't used to talk about this issue, but this has become an issue on which they may vote in the future.
which is, and what I have seen at ground, people are really frustrated. The unemployment rate is at an all-time high. People want jobs, they want it desperately. And now the rosy picture of all those अच्छे दिन और हम ये आपको इतने 5 करोड़ जॉब्स दे देंगे, 2 करोड़ जॉब्स दे देंगे, जब मिल नहीं रहे हैं, टाइम हो गया है, और कब तक उन वादों पे सोचा जाएगा, वो लोग अब रियली टर्न कर रहे हैं. अगर बेनिफिट कोई और दे रहा है और कहीं ना कहीं से उनको जॉब अगर कोई और बंदा देता है, तो वो लोग डायरेक्टली उसी को वोट करने जाएंगे ना, जो पार्टी उनको जॉब्स दे रही है. एज सिंपल एज दैट. तो अगर मैं आपको अपने ही अगर पास में बताऊं, देयर वर 10 पीपल हु वर नॉट गेटिंग प्लेस समवेयर और द अदर, एंड दे वर लाइक, आई वुड से, जिस फैमिली से थे, हार्डकोर बीजेपी सपोर्टर्स, एंड अनएम्प्लॉयमेंट की थी प्रॉब्लम. मैंने उन्हें जस्ट लाइक, मुझे पता है कि उनको जरूरत थी जॉब की, तो मैंने बोला कि ट्राई कर लो रोजगार मेला पे, इस पे बाजार पे वो करके रजिस्टर करके, मे बी लग जाए कोई जॉब. तो उनमें से 3 लोगों की जॉब लग गई. एंड उनकी जब मैं उनमें से एक की मॉम से मिलने गया, तो शी वाज लाइक, आई रियली सपोर्ट दिस आम आदमी पार्टी नाउ. आई सेड व्हाई? कहते मेरे बच्चे को जो जॉब देगा, मैं उसके अलावा किसी और को क्यों सपोर्ट करूं? तो आई वाज लाइक, नाइस. Just one personal experience that's needed to turn people, is it? टोटली इमोशन, ये जो ये, और कोर्स ये सिर्फ एक इमोशनल चीज नहीं है, ये एक इकोनॉमिकल ह्यूज इशू है कि जॉब जो देगा, मेरे घर में जो रोजी रोटी प्रोवाइड कर रहा है, मैं उसको वोट करूंगा. सिंपल एज दैट. सो या आई कैन सी दोस चेंजेस, आई कैन सी सम एग्जांपल्स ऑफ दोस ऑन ग्राउंड. बस एक विजन दे दो शॉर्ट में कि अगर फुल स्टेटहुड वाली स्टेट अगर कभी किस्मत में अगर इलेक्शन जीत गए, पंजाब हो, गोवा हो, उत्तराखंड हो, वहां के लेबर इश्यूज को कलेक्टिव बार्गेनिंग में फोरफ्रंट में लाने के लिए क्या किया जा सकता है? एक विजन दिखा दो. ओके, सो आई वुड से अभी जो करंट हमारे लॉज हैं, आई वुड से लेबर कोड्स तो अभी नहीं आए हैं, जो भी हमारे करंट लेबर लॉज हैं, इन्हीं के बेस पे दिल्ली गवर्नमेंट जितने अच्छे से इनको इम्प्लीमेंट कर पा रही है, देयर इज नो अदर गवर्नमेंट दैट हैज बीन एबल टू डू इट. जितना फंड्स हम स्कीम्स लेबर के ऊपर दिल्ली में लगा रहे हैं, इतना कहीं नहीं लगता. जितनी जल्दी लेबर के केसेस दिल्ली में ज्यूरिसडिक्शन के थ्रू सॉल्व हो पाते हैं, उतने और किसी स्टेट में इन माय एक्सपीरियंस नहीं हो पाते हैं. मिनिमम वेजेस सबसे हाईएस्ट पूरी इंडिया में दिल्ली के अंडर है. तो दीज आर बेसिक लेबर के इश्यूज. उसकी राइट्स पूरी हुए, उसको वेजेस टाइमली मिले और अच्छी मिले. हम इन सारे इश्यूज को साथ में लेके अगर हम किसी और स्टेट में जाते हैं, और जल्दी से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, क्योंकि हमें एलजी का अप्रूवल के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, तो हमें अब कई सारे इश्यूज के लिए करना पड़ा था. तो अगर हम कहीं ना कहीं इनको लेकर जाते हैं, आई वुड से कि हम लेबर एक प्रो लेबर जो पार्टी है अभी इस टाइम इंडिया में, आई वुड से वन वुड बी द आम आदमी पार्टी एंड वन वुड बी दिस केरला पार्टी. उसके अलावा कोई भी लेबर के फेवर में कोई और पार्टी आई हैव नॉट सीन के काम कर रही हो. एंड आई सर्टेनली फील कि अगर ये पार्टी को अगर फुल स्टेटहुड वाली जगह मिलती है, आई इन माय ओपिनियन, मे बी अगर पंजाब इलेक्शन के अंदर दे आर एबल टू ट्रांसफॉर्म दैट स्टेट एंड एबल टू गेट दैट स्टेट, तो उसके जितने लेबर इश्यूज, आई सर्टेनली फील उसको फोरफ्रंट में रख के they can show some reforms जो पूरी इंडिया ने कभी देखे नहीं होंगे. Wow, okay. Right. I mean, after a grim picture, this is an optimistic vision that we should hope for. Yeah, certainly. Like अगर यहाँ पे काम करते हुए जो मुझे पता चला है, that is like it has been something ना, कि पता होता है कि तुम्हें साथ में काम करते हो तो विजन पता चलता है लोगों का. तो what I have seen is this party's leadership has some great vision, not just for the state but for this country. So I really hope that our party gets something so that they are able to implement and see the India of their dreams, and which is also India of our dreams as well. Nice. Do we have some more questions from our guests? So I have another question. Basically, yes, Mansi. Hey. So what is the reaction of like say business owners in Delhi? Because from what I've read about say restaurant owners or even traders, like AAP has actually brought out some pro-business policies as well, like reducing tax or allowing restaurants to open like for 24 hours. So what is the general reaction of trader community? Would you have some insight on that?
सो जो एम्प्लॉयर कम्युनिटी होती है उसको हम एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कम्युनिटी की तरह ही देखते हैं कि सिर्फ एक कैपिटलिस्ट क्लास ऐसे नहीं होती है। छोटे छोटे ट्रेडर्स होते हैं जिनकी मानसी तुम बात कर रही हो, ओन अकाउंट वर्कर्स होते हैं, छोटे छोटे अपनी दुकानें होती हैं, छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं। उन सब के लिए एक इंसेंटिवाइज स्कीम पार्टी लेकर आई है। टैक्स इंसेंटिव स्कीम्स दिए पर्टिकुलर सेक्टर्स में दिए जाते हैं। वो फंड्स इंजेक्ट करे गए हैं कई सेक्टर्स में। रेस्टोरेंट ओनर्स को जो आप बात कर रहे हो एग्जैक्टली कि लोगों को फायदा दिया गया है कि वो ज्यादा टाइम तक काम कर सकते हैं। कई सारी रिबेट दी किसी जगह पे ओपन अप करने के लिए। तो एम्प्लॉयर्स आर रियली रियली वेरी हैप्पी जो एक्चुअली काम कर रहे हैं। ऑल दोज एम्प्लॉयर्स आर रियली हैप्पी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अभी दिल्ली के अंदर जिस तरीके से रिफॉर्म्स आ रहे हैं, आई वुड से एक वेरी स्ट्रेंजली एक हार्मोनियस रिलेशन देखने को मिलता है लेबरर्स एंड एम्प्लॉयर्स के बीच में इन सम इंडस्ट्रीज एज वेल। बट इन स्मॉल इंडस्ट्रीज, एट सम वेरी लार्ज इंडस्ट्रीज, हाँ अभी ये प्रॉब्लम है, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। बट जो ओन अकाउंट वर्कर्स हैं या स्मॉल ट्रेडर्स या एम्प्लॉयर्स हैं, विद देम दे आर रियली गोइंग गागा अबाउट दिस पार्टीज पॉलिसीज बिकॉज एक्चुअली उनकी इनकम भी बढ़ रही है एंड व्हाट एल्स डू दे वांट। Yeah. Do we have some more questions? Harshil, yes, Mansi, go ahead. No, I mean, I'm just curious because मैंने हर्षिल की बहुत सारी वीडियोस देखी है with Manish Sisodia where you go to all these offices and सबको fire करते हो और काम करवाते हो. Tell me something from that. Okay. So it's been an experience of itself. So क्या होता है अगर आप मनीष सर को कुछ प्रॉब्लम्स बताते हो, लाइक हमारी कोई एक वीकली मीटिंग होती है जहाँ पे डिपार्टमेंट की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या रिफॉर्म्स करने हैं उन सबको लेके। तो ऑन ग्राउंड सिचुएशन सर को बताते हो कि अच्छा इस XYZ डिस्ट्रिक्ट में इस XYZ पर्सन के साथ ये दिक्कत है। He just asks you once, you're sure about it कि ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है, एंड यू नो ये ठीक है। यूर लाइक आप अपना होमवर्क करके गए हो तो आपको पता होता कि हाँ यहाँ पे ये दिक्कत चल रही है एंड लोगों को कंटिन्यूसली यहाँ से कंप्लेंट आ रही है, तो यू से कि हाँ है। सो नेक्स्ट डे ही प्लान सरप्राइज विजिट, किसी को नहीं पता होता। एंड एक भी वहां पे कोई जो ऑफिस का बंदा होता है या इवन सर के अपनी टीम के बंदे होते हैं उनको नहीं पता होता कि सर की विजिट होने वाली है किसी जगह, बिकॉज वी डोंट नो कौन लीक कर देगा। सो देन वी जस्ट गो टू दैट प्लेस एंड जस्ट ट्राई टू शो कि इफेक्टिव गवर्नमेंट क्या कर सकती है। एंड जो लोग गलती करते हैं उन्हीं को वहां से मतलब निकालने की बात करी गई है। इफ यू सी सम ऑफ दोस वीडियोस, वी हैव गॉन टू अ प्लेस जहाँ पे बहुत अच्छे से काम चल रहा था। सर प्रेज देम अ लॉट कि यार बहुत अच्छे से कर रहे हो, दिस इज द मॉडल जिसको यूनिवर्सलाइज करके दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स में लगाओ। कई डिस्ट्रिक्ट्स में एब्सोल्यूट इतनी ज्यादा करप्शन की प्रॉब्लम होती है, काम नहीं करना होता। उन लोगों को वहां से एक एग्जाम्पल सेट करना बहुत जरूरी होता है। एंड उनका इफेक्ट आई वुड से जो मेरे अपने एक्सपीरियंस में मुझे दिख रहा है, दिल्ली में जितनी 9 डिस्ट्रिक्ट्स के ऑफिस लेबर ऑफिस काम होते थे, इस टाइम पे सारे ऑफिस में सर के डर के चक्कर में जो करप्शन है वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो है। जो हम अंदर के लोग होते हैं उन लोगों के थ्रू पता चला है कि अब इस टाइम पे करप्शन नहीं हो रहा है, उनसे पैसे नहीं मांगे जा रहे, उनके क्लेम्स जो पिछले कई सालों से एक्सेप्ट नहीं होते थे अभी मिलने शुरू हो गए हैं। मोर देन आई वुड से 45,000 people got COVID relief benefit during this COVID time, and Delhi was one of the first states जिसने ऐसा कोई benefit कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को दिया था। सो these are kind of things जो दिल्ली गवर्नमेंट ही कर पा रही है। एंड करप्शन, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन की एक जो जरूरत है इस टाइम पे हमारे लेबर डिपार्टमेंट में दिल्ली में, वो इमेज एब्सोल्युटली इस टाइम पे डिपार्टमेंट के पूरे ऑन ग्राउंड दिखती है। एंड आई पर्सनली अगर मेरे से पूछा जाए, बहुत ज्यादा मजा आता है, बिकॉज यू नो के कुछ काम कर रहे हो जो तुम्हारा मन करता है, वो चीज तुम ग्राउंड पे देख पाते हो, एंड यू आर एबल टू हैव अ गुड पीसफुल स्लीप एट द एंड कि हाँ you did something productive in this life. So yeah, it has been an experience in itself for me. Yeah. Awesome. You were talking before that you were a part of you're part of some committees on forming policies, on sitting with influential groups as well as a CM fellow. I would imagine that you would be probably the youngest guy in the room, right? Yeah. And I mean everybody would be seasoned people who have climbed up the ladder, and yeah, you are there, मतलब एक नौसिखिया जो अभी आया है डिग्री लेके. How are you? Yeah,
लोग कैसे लेते हैं जब अगर आप क्रिटिसिज्म डालते हो, आप अपने पॉइंट्स सामने रखते हो, हाउ डू पीपल टेक इट? आई वुड से इट्स ऑल इन द लीडरशिप, जहां से तुम पावर लेते हो। अगर जो मेरे लीडर हैं, अर्लियर आई वाज वर्किंग विद ऑनरेबल मिनिस्टर गोपाल राय जी एंड करेंटली आई एम वर्किंग विद मनीष सर, तो जितनी वो पावर अगर उनको जितनी, अगर हमारे रूम में 10 लोग बैठे हैं एंड व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट सीजन लोग, उन लोगों को क्या चीज आती है, एक चीज कितने तरीकों से नहीं हो सकती है, जो भी हमने प्लान बनाया है उसके अंदर क्या क्या दिक्कत है और क्या क्या नहीं हो सकती है। तो if our minister tells us के find a way out and he gives me that power in front of those people, so they have to take it in that way कि अच्छा इसको अगर पावर मिली और ये करेगा ही करेगा। तो I would say it all like उनके थ्रू पावर सीपन होती है एंड इस पूरी चीज को कैसे पूरा मैनेज करना है। शुरू में थोड़ा सा वो मुंह बनाते हैं, लेकिन उनको धीरे धीरे पता चलता है यार हो भी सकता है। अगर एक सिंपल सी चीज होती है, जैसे अगर I'll give you an example, अभी आज नहीं 2 दिन पहले का एग्जाम्पल है। एक नॉर्मल फाइल थी, कहीं पे इंटरनेट नहीं चल रहा है, सो बोला गया कि ये 40 हर कैंप्स लगे हुए थे, बोला गया कि यार ये 40 जो फॉर्म्स रोज 40-50 लेबर आ रहा है और हमारा सर्वर नहीं चल रहा है, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। एनआई जो हमारे इंटरनेट सर्वर वाले लोग हैं वो कह रहे नहीं सर अभी 2-3 दिन लगेंगे। तो सर ने एक सिंपल चीज बोल दी कि उनका कॉपी रख लो अपने पास एंड बाद में जब सर्वर चल जाए तब भर देना, 1 हफ्ते बाद जब भी चले, क्योंकि लोग तो आ रहे हैं। बट दे आर लाइक कि नहीं सर अगर उनकी कॉपी रख ली तो हमारे पास वो कॉपी मिसप्लेस हो सकती है, ऐसे XYZ तरीके से नहीं हो सकती। मैंने बोला आई जस्ट सेड वन थिंग कि उसके आप सॉफ्ट कॉपी ले लो, आपके पास लोग आते हैं, आप सर्वर में लोड तो वैसे भी कर रहे थे, तो आप अपने जो लैपटॉप है उसके अंदर से कॉपी बना के फोल्डर बना के रख लो। कहते एंड दे डिड नॉट हैव एन आंसर बट दे वांटेड टू शो, एक आध बंदा, आई वोंट से एनीवन कि कौन थे, बट दे वांटेड टू शो कि नहीं हो सकता है काम। then your minister takes them for a class कि when minister gets to know कि हो सकता है ये करना नहीं चाहते हैं, then he takes them for a class कि तुम क्या किस साइकी के साथ काम करना चाहते हो। so I would say सारे टाइप के एक्सपीरियंस मिलते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं यार ये कौन आ गया है, ये क्यों हमें कौन बता रहा है, हम कर रहे हैं 20 साल से काम, ये कैसे बताएगा। लेकिन कई लोग होते हैं who actually want to learn from you as well, who want to learn के जैसे ये लेबर कोड जो मैं आपको बता रहा था, there are 2-3 लोग हैं जो मेरे साथ बैठ के डिस्कस करते हैं, लाइक prominent people above 60 years people जो बैठ के मेरे से सुनना चाहते हैं कि हाँ यार क्या लेबर का क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, because you will be able to tell us better। so हर सिक्के के 2 पहलू टाइप सिचुएशन है और कुछ नहीं। right yeah so do we have any other questions? तो मतलब एक तरह से ये बता दिया। Sachin. Yes Sachin, please go ahead. Hey Sachin, how are you? Hi, I'm good. How are you? Good to have you at Aapka Radio Call. Thank you. Harshil, I know you are more into labor laws, but you have very strong opinion and understanding about economy also. So, and I have been talking to you a lot earlier. So earlier you were having a mindset that the main problem with the economy in Indian economy is that there is a demand and supply issue. Do you still believe that still it is a demand and supply issue? And if it is not a demand and supply issue, so is it possible, like in Delhi state, currently we are working in one shift? अगर consumption का issue नहीं है, then how about starting another shift, like working shift, not double the shift, but 1.5 shift, like another round of working shift. People should work 8 hours, and some more people should work for another 4 hours, or maybe some alternative way. तो उससे demand भी increase होगी अगर market में demand है तो, and उससे शायद कुछ labor problem भी solve हो. Any thought about it? Yeah, so this is something that which I would say is already happening on the ground. The extra shift you are talking about, double shift mein kaam in numerous industries, not only in Delhi, all over India chal raha hai. But yeah, your earlier part of the question that you said, demand and supply की problem है, totally mismatch, जो demand supply के mismatch की problem is something I would still abide by. That is the major issue जो अभी हमारी economy suffer कर रही है. And I would say
सिर्फ डिमांड की नहीं रह गया, कोविड के टाइम से ये सप्लाई की प्रॉब्लम हो गई थी, अब सप्लाई वापस आ गया है, लेकिन एज in our earlier discussion it was very clear कि लोगों के पास परचेजिंग पावर है ही नहीं। जैसे लाइक I remember I shared an article with you Sachin as well, जहाँ पे पता चला था कि पिछले 8 महीनों के अंदर ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट ने क्या बताया था कि इंडिया के अंदर जो बिलियनियर्स हैं उनकी इनकम 40% बढ़ी है। एंड आपको पता है कि हमारे माइग्रेंट वर्कर्स या जो लोएस्ट पॉपुलेशन थी उसके बाद कोविड के टाइम क्या हुआ। तो ये प्रॉब्लम क्या है कि एक टाइम पे किसी पर्टिकुलर लोगों की 40% इनकम बढ़ती है जो ऑलरेडी अल्ट्रा रिच है, एंड दूसरे लोग जिनके पास खाने को पैसा नहीं है उनको हमारी गवर्नमेंट तब भी रोज का खाना राशन प्रोवाइड भी नहीं कर पा रही है। तो ये प्रॉपर एक प्रॉब्लम है जहाँ पे डिमांड लोग करना चाहते हैं लेकिन उनके पास वो कंजम्पशन पावर ही नहीं है कि वो कर पाए। बट एट डेली लेवल आई वुड से this problem still prevails. There is lots of miles to cover as well. I believe if Delhi is in a state जहाँ पे वो अपने laws खुद बना सकती है इन चीजों को लेके and is able to actually work on these labor rights through a central part, maybe through a, as we already discussed, a full state road, maybe शायद हम इन सारी problems को जरूर solve कर सकते हैं। Akhil here. Yeah, Akhil, please. Go ahead. Yeah, Akhil, sorry. Hey, Harshil, do you have any blogs or YouTube channel or like Facebook page wherein you share your research on labor and and economy? I don't have a blog per se, but yeah, I do have a Facebook page, but I don't share much of my research there. I have my articles, like if you want to read my articles, you can search me on Google Scholar. So I have a few published articles there about Indian economy skills, so you can read my work there as well. Yeah. Google Scholar, right? Yeah, on Google Scholar. Yeah. Okay. Just on a related note, as suggestion from my side, I mean, not just for the Labor Ministry, but also all the other departments of the government, that you guys should really publish white papers of the impact of the policies that are taking place. You know, smallest thing like the drug pricing के लिए कैसी negotiation चल रही है उसके ऊपर, हाँ, I mean treatment prices कैसे regulate हो रहे हैं उसके ऊपर, लेबर लॉस में मिनिमम वेज कैसे लिविंग वेज को ट्रांसलेट करता है, इससे लाइफ आउटकम्स में क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है, थिंग्स लाइक दीस they deserve to be documented. I mean, like, and it would be really great if people like you from the research community are also a part of the government to produce such literature. What do you think about it? Absolutely. I myself always feel the same, that the government is currently, like the Delhi government is doing some revolutionary work, and it's not able to advertise those works really well, and huge fault of that is to the media. But yeah, I would really feel like increasing this transparency is something that we are currently also focused on. From my side, I'll tell you what I initially, like from past 1 month have been doing. I'm trying to develop the website for the Labor Department of Delhi, where there is full transparency, where we know how many cases are going on, or if someone is getting got some money from some scheme, that person's name, what money he got, those transparency should be there. People should know किस scheme के अंदर क्या काम हो रहा है, and this is something I really want to push myself as well. But your suggestion of our experience of how things are going, negotiations and what impact they are, certainly it's something I would really want to work on. But given the time constraint, it's something I won't say I'm surely going to work on, but it's something I would really want to work on. Right. Do we have any other questions? Prashant, I have one more question. Yeah. Go ahead, please. हर्षिल, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेबर डिपार्टमेंट से अलग है, बट मैं आपके थॉट्स जानना चाहता हूँ। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूपीएससी लेटरल एंट्री रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू किया है, तो इसके बारे में क्या थॉट्स हैं आपके? Sorry, I was not able to hear. I got an important call. Can you please repeat? या वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूपीएससी में लेटरल एंट्री का प्रोसेस शुरू किया रिक्रूटमेंट का, लाइक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल and different directors and different units. इसके बारे में क्या थॉट्स हैं आपके? मुझे ये चीज अच्छी लगी। ये मोटिवेटिंग है या डीमोटिवेटिंग है?
लोगों के लिए? This is something I would say a very step in the right direction, but मुझे इसके साथ एक बहुत मोटी apprehensions है कि कौन लोग हैं जो उनकी selection criteria है वो क्या है, वो उसमें अगर biases हैं तो ये काम सही से नहीं कर पाएगा. And I have heard lot of biases. जिन लोगों का selection हो रहा है इस lateral entry के through, वो कई लोग हैं जो undeserving हैं जो जिस position पे पहुंच रहे हैं. Lateral entry isn't a wrong thing, or I would say something जो I would say really motivate people, जो लोग देश के लिए काम करना चाहते हैं but अभी किसी और XYZ जॉब में फंसे हुए हैं but उनके पास हैं आइडियाज रिफॉर्म्स के, they should get that opportunity. but अगर इसकी जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसको थोड़ा ध्यान से किया जाए तो it can do wonders. and I have some specific numerous examples I've seen जहाँ पे ये जो lateral entry का gross misuse हो रहा है, and जिन जिन लोगों को ये positions दी जा रही हैं वो लोग वहां पे कैसे पहुंचे हैं, you and me ourselves know. Thank you. Yeah. So so it looks like your PhD is about to end and your fellowship term is also about to end. So what's next? What's next for Harshil Sharma? Yeah, so just on the New Year Eve only, just after the New Year Eve, the same question was asked to me by Deputy CM sir as well. I really don't know. I told him कि मुझे नहीं पता था कि मेरे को ये काम करने में इतना मजा आएगा. I hate to leave this job अगर मुझे छोड़ा जाए. तो सर ने भी यही बोला था, कहते I don't want you to. And he said कि reforms चल रहे हैं, reforms करो. And जितना reforms अभी कर सकते हो, जितने अभी मेरे पास जितने टाइम का टर्म है यहाँ पे, you have to do it. As simple as that. So मेरी fellowship term ended I would say 20 days ago, but still I'm working just like I was working पहले भी. So I'm not getting a salary, but this is something कि motivation जो है यहाँ पे बहुत high है. मन नहीं करता. PhD लिख रहा हूँ, थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन यहाँ पे काम करने में जो मोटिवेशन है, I don't think मेरे को लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी वापस मिल पाएगी जो चेंज मेकर्स हैं उनके साथ मिलके चेंज करने की. लिखता रहूंगा चीजें, मे बी एकेडमिक्स में आगे चला जाऊंगा, मे बी कुछ परमानेंट जॉब भी मिल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो सारी चीजों में ये सेटिस्फैक्शन जो अभी मिल रही है लोगों को उनका हक दिलवाने की, क्या पता ये मौका किसी वापस ना मिल पाए. एंड I'll just to give you a short example. I met people जो 1996 या 2002 में एक्ट बनाए हैं, जो अभी रिपील हो रहे हैं, जिन लोगों ने वो एक्ट बनाए वो लोग मेरे थ्रू कुछ चीजें इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं. जब भी मैं उन लोगों को मिलता हूँ, वेरी सीनियर पीपल, 70 years of age, 60 years of age, I just realize कि मेरी कितनी इंपॉर्टेंस है इस सिस्टम में. इफ आई गो फ्रॉम हियर, ये लोग डायरेक्टली जो चीजें इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे. सो I see myself just doing what I'm doing right now, bringing this change in the department. So this is something I see myself doing in at least in the near future. But yeah, आगे का I would really want something to do what I'm doing right now, because job satisfaction is something which I'm getting here. Would you be open to move to another state अगर किस्मत से पंजाब, गोवा कहीं पे इलेक्शन जीत गए तो? Yeah, it's all about reforms. जहाँ पे भी मौका मिले काम करो, जितना लोगों की मदद कर सकते हो इस लाइफ में वो करो. My motto in my life is the day I die, I want when I'm on my deathbed, I want to think कि yes I tried. And वो फील मैं अपने मन से नहीं छोड़ना चाहता. तो कोई मौका मिले जहाँ पे I can touch lives, I'm surely open to that. Yeah, this is probably the biggest, most influential pitch I've heard for the CM Urban Leadership Fellowship. Yeah, so our relation has gone beyond this fellowship right now with the Delhi government. Right. It's absolutely out of that. Yeah, I mean, tell us a bit more on when does this fellowship open up further, so that the next cohort can try applying. Yeah, so tentatively, like as you must have heard about the LG saga that is going on currently in Delhi. So this thing has to pass through the LG. Our cabinet has approved the next slot. So the day LG passes this, we are going to have a next slot. Tentatively, what the timeline we think maybe in next 3 months, this thing would be done. And then I would really want people from any part of India or from any part of the world, I would really want them to come here and actually work for the change that they actually believe in. This is an opportunity of a lifetime. So maybe like
लाइफ में वापस कभी ना मिल पाए। तो आई वुड रियली वांट एनीवन एंड एवरीवन हु बिलीव्स कि उसको कुछ चेंज लाना है जरूर सीएम फेलोशिप के लिए अप्लाई करें। Yeah. I mean, when you're talking about the fact that you carry a power which has been lent to you by a minister or an MLA or something like that, and you carry that power, and then you talk to the officers and the committees with that power, right? It sort of makes me feel that कि कमी इंडिया में एग्जीक्यूटिव में से ज्यादा लेजिस्लेचर में थी अब तक। मतलब हम जिनको चुन के डालते हैं, हाँ, अगर लेजिस्लेचर में नियत बदल दो तो एग्जीक्यूटिव अपने आप लाइन में आ जाएगा। क्या ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं इसका? Absolutely, I would say you were right, absolutely on point के जो हमारे दिमाग में प्रॉब्लम रहेगी ना कि नहीं लॉ सही से नहीं बने हुए यार, इम्प्लीमेंट तब होएगा ना जब लॉ सही से, अरे लॉ सही से बने हुए हैं, उनको इम्प्लीमेंटिंग जो अथॉरिटी है उसका मन ही नहीं है वो काम करने का। जिन लोगों के लिए अगर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, ये सारे काम कर दिए, तो उनको इलेक्ट क्यों करेंगे? प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक साइकी ही नहीं है ना इस टाइम पे हमारे इलेक्टेड मेंबर्स की। तो आई रियली फील के इस टाइम जो इम्प्लीमेंटिंग पावर्स दिल्ली के अंदर हैं वो उनको ढंग से उन्हीं सेम लॉज में, उन्हीं एग्जैक्ट सेम लेजिस्लेचर्स में कैसे बजट को भी डबल कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, पावर, ईवी पॉलिसी, स्टार्टअप पॉलिसी, ये सारी कहाँ से बना पा रहे हैं? सेम लोग हैं, सिर्फ इंटेंशन का फर्क है, नियत का फर्क है, और इसलिए काम हो पा रहा है। सो यू आर रियली एब्सोल्युटली राइट ऑन पॉइंट। लेजिस्लेचर की प्रॉब्लम नहीं है, लेजिस्लेटर्स की प्रॉब्लम। Right. Yeah, that's a very strong strong conclusion. Yeah. About, I think last year I heard of a agreement with Abhijit Banerjee, the Nobel Economics laureate. His organization and Delhi government had made an agreement to test the efficiency of the healthcare related policies, the mohalla clinics and things like that. So yeah, we haven't heard a follow-up on that, but if similar things could be done across all ministries, getting a third-party research institution to do some scenario analysis of that would be really helpful. Yeah, this is something that is going on for a few of the departments, not on a whole for the all the policies, but few of the departments, some of the policies, this is actually happening, as you mentioned about the organization of Abhijit Banerjee and Esther Duflo. They are doing it. There are various other organizations with which Delhi government has signed their MOU, and they try to work in coordination with Delhi government on what policies are working on ground and how can those policies be improved. So Delhi government has good MOUs signed with many data savvy institutes as well, who keep on feeding some data to the government so that they can actually implement those policies well. Right. Yeah. That makes a lot of sense. Do we have some more questions? Yeah, we have already long exceeded the time for this podcast, but conclude करने से पहले एक सवाल, टिकट देंगे तो चुनाव लड़ोगे? Maybe not ruling it out. Because जो लोग कहते हैं, मेरे को बहुत इरिटेशन होती है जब लोग कहते हैं कि आई एम एन apolitical person. I hate those people. जो ऐसी बातें करते हैं। Completely. अगर तुम बातें करते रहोगे चेंज लाना है, ये करना है, वो करना है, और जब मौका मिले तुम कह रहे हो कि नहीं मैं तो नहीं कर सकता। अरे तुम नहीं तो कौन करेगा? If getting an opportunity, no, I won't say no to it. If I get any opportunity in future. Yeah. मतलब सबसे दुख की बात यह है कि मतलब पॉलिटिक्स इंसान के हर पहलू को छूता है। हाँ, उनके हाउसिंग से लेके उनकी नौकरी तक, पानी से लेके बिजली तक, फिर भी मतलब लोग कैसे कह देते हैं कि मैं एपॉलिटिकल हूँ आज की तारीख में। करना नहीं ना, हिम्मत नहीं है चीजें करने की। लाइक जो मैंने आपको पहले बताया, रिस्क जो एक चीज होती है लाइफ में, बहुत कम लोग होते हैं जिनको लेने का मन होता है। जितने भी रेवोल्यूशनरीज रहे हैं उन्होंने लाइफ में एक रिस्क ही लिया, इसीलिए वो रेवोल्यूशनरी रहे हैं, इसलिए वो चेंज मेकर्स रहे हैं। सब लोग नहीं बन पाए हैं, 1 in a million ही भगत सिंह बन पाया, सब नहीं बन पाए, तो लिया है रिस्क। And if you really wish to do something for the nation rather than just cribbing about it कि ये नहीं है या वो नहीं है, you have to step into it ना, कि तुम्हें खुद करना पड़ेगा वो चीज क्लियर। एंड आई पर्सनली बिलीव के जितने लोग ऐसा करते हैं, दैट आई रियली सैल्यूट देम। चाहे कुछ बड़ा कर पाए नहीं कर पाए, टेक अ स्टेप यार एट योर राइट।
And I'm really happy that this CM fellowship, in a way, pads that risk quite a bit. Matlab, it gives a decent salary to a fellow to experiment with public policy, governance, politics, etc. So, matlab, theek hai. I mean, the risk factor is not what it used to be before. You have these fellowship programs to try. I mean, now it's growing to other yeah. states as well. Yeah. Yeah, So, तो look, एक बहुत ही पॉजिटिव कंपटीशन हो गया इन चीजों को लेकर, अगर दूसरी गवर्नमेंट्स भी exactly. कर रही हैं, which is very Yeah, good. yeah. अगर सब लोग कर पा रहे हैं ऐसा कुछ. अशोका यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप किया है अभी हरियाणा Nice. गवर्नमेंट ने कुछ Nice. फेलोज निकालने के लिए, which is something I really like That's really see good. Yeah, कि yeah. अगर लोग पढ़ रहे हैं, उन लोगों को फायदा गवर्नमेंट ही नहीं ले पा रही है, उनका नेशन ही नहीं ले पा रहा है, तो फिर कौन लेगा? So Correct. I personally feel it's something really a revolutionary step, and these lateral people are something I really feel are the future. They are gonna help bringing out way more reforms in the future as well. And I'm really lucky to be part of one of the initial batches of it. Wow. We're really proud of you, Harshil, for what you managed to accomplish at such a young age and all the exposure that you managed to get. We're pretty excited about what's coming ahead for you, and yeah, let's stay in touch. And it was great having you. Thank So you. Thanks. Before I conclude, do we have any final questions or remarks? No question from my side. Just one thing, Harshil. If you want to utilize us for anything like data crunching or something, voluntary basis, please do not hesitate and just give us a call. I have a lot of work. I am gonna, if you give me this opportunity, I'm gonna trouble you like anything. So I would say please beware. I have a lot of data work going on right now. Yeah, some of us do come to India from time to time. So matlab, if we have a couple of weeks to spare, काम पे लगा सकते हो हमको भी. Fantastic. It would be like it would हमें be मजा आएगा थोड़ा छापा मारने में. Yeah, but yeah, it was great being listening to all people. हाँ जी, कौन सा? You visited one labor office and with Manish sir. तो वो उसका प्लानिंग कैसे था? I mean, वो कहीं से इंफॉर्मेशन आई थी या you did some homework and कहीं से कुछ इनपुट मिला and then वो छापेमारी वगैरह हुई? कंप्लेंट्स आती रहती हैं सचिन, वी गेट कंप्लेंट्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. तो किस एक जगह से बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं, वी नो कि यहाँ पे दिक्कत चल रही है, तो उसके ऊपर कोई प्लानिंग नहीं होती है. जिस बंदे ने कंप्लेंट करी है उसको भी नहीं बताया गया कि हम इसके ऊपर कोई डायरेक्ट ऐसे एक्शन लेने वाले, कोई हम रेड करने वाले. बट सिर्फ सर के साथ एक बार डिस्कस करा, यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स है, अपनी साइड से होमवर्क किया, आईटी के साथ बात करी कि है दिक्कत, यस वी फाउंड आउट दोज मिस्टेक्स एंड वी जस्ट वेंट फॉर इट. सो वी सर के साथ ये इसी तरीके से चलते हैं सर, और मनीष सर इसी हिसाब से चलते हैं कि अच्छा ये हो गया, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, चलो इस चीज को ठीक करते हैं. सो या दैट इज हाउ थिंग्स वर. एंड या इट वाज रियली समथिंग ऑन ग्राउंड, कैसे एक्शन होता है, कैसे इम्पैक्ट होता है, सामने सामने एक दिख जाता है. सो या इट वाज फैंटास्टिक. Great work. Yeah, it was amazing talking to you, Harshil. We wish you the best for all your future endeavors. Thank you. I'm really glad to be here talking to you all. If you need any sort of help, please connect us to other CM fellows as well from other ministries. They may also have some interesting experiences and insights to share. Sure. I would really want to do that. So you can also get some insights on education, health, perfect, water, exactly. power, everyone. I'll surely try to.